So, good morning students. In the last lecture we have discussed the reactions of aryl halides, reactions of haloarenes. Let us summarize the reactions of haloarenes. So, here I have this chlorobenzene and here I will write the various reactions of this chlorobenzene. So, first reaction is when this chlorobenzene is treated with magnesium metal, it will form magnesium metal will be inserted here and it will form aryl magnesium halide that is what? Phenyl magnesium chloride. ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. When this chlorobenzene is treated with Cl2, then substitution will take place in the presence of AlCl3. Then the substitution will take place at ortho and para position. जो substitution है that will take place at ortho and para position. So and para isomer will be formed in major amount. एक A isomer form हो जाएगा along with formation of its para isomer and जो para वाला जो compound है that will be formed in major amount. Then if it is treated with CH3Cl in the presence of AlCl3, the name of the reaction is Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Name of the reaction is Friedel-Crafts alkylation reaction and alkyl benzene will be formed. It will form methyl benzene. And if it is treated with CH3Cl acetyl chloride in the presence of AlCl3, then it will form एसिटोफिनोन. ठीक है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? एसिटोफिनोन जो है वो फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर इसी का रिएक्शन हम कैरी आउट करें और रिएक्शन जो है जैसे इसी के अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक और इसी का मॉलिक्यूल है और ट्रीट कर रहे हैं हम सोडियम मेटल के साथ. ठीक है, सोडियम मेटल के साथ जब ट्रीट किया देन व्हाट विल हैपन? We have studied Fittig reaction, Wurtz-Fittig reaction. So biophenyl जो है वो फॉर्म होगा इसके केस में यहाँ पे. And अगर यही रिएक्शन हम CH3Cl और सोडियम मेटल के साथ करें then what will happen? This product will be formed. Clear? बाकी और रिएक्शन है जैसे क्लोरोबेंजीन है, अगर इसकी नाइट्रेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया देन इट विल फॉर्म क्लोरो ग्रुप तो एज इट इज रहेगा NO2. ठीक है, प्लस दूसरा जो आइसोमर है वो भी फॉर्म हो सकता है, बट जो पैरा वाला जो आइसोमर है दैट विल फॉर्म्ड इन मेजर अमाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो यूज करेंगे कौन सा नाइट्रिक एसिड होगा? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा. ठीक है, सो इन दिस वे
दिस क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद वेरियस रिएजेंट्स। इस तरीके से ये क्लोरोबेंजीन जो है डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ जो वो रिएक्ट कर सकते हैं टू फॉर्म वेरियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस द सम अदर कंपाउंड्स ऑफ alkyl halides, some commercial important compounds of alkyl halides. Students, some commercially important compounds of alkyl and aryl halides. First compound is methylene chloride. If we talk about its IUPAC name, if we talk about its structure, then its structure will be like this. Here we have 2 hydrogen and 2 chlorine. और अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोमीथेन एंड कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथिलीन क्लोराइड। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज, अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज अ कलरलेस एंड स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, किस तरह का कंपाउंड है ये? कलरलेस कंपाउंड है एंड स्मेल जो है स्वीट स्मेल है इसके केस में, विद लो बॉइलिंग पॉइंट। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, then boiling point of this compound is 313 Kelvin। ये जो compound है इसका जो boiling point है this is 313 Kelvin। And if we talk about its uses, then it is used as solvent in paint industry। paint industry में use होता है as solvent। And due to its low boiling point, it is used in pharmaceutical extraction। in pharmacy we have to extract different drugs। ठीक है, in the manufacturing of different drugs we have to separate various chemical substances। तो वहां पे क्या यूज होता है? वहां पे डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट ड्रग्स की एक्सट्रैक्शन के लिए जो है इस कंपाउंड को यूज किया जा सकता है। एंड इट कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। डिफरेंट ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस कंपाउंड को जो है वो यूज किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट अगर यूज की बात करें, इट इज यूज एज रेफ्रिजरेंट। ठीक है, एयर कंडीशनर्स हो गए या फिर और सब्सटेंसेस हो गए, तो और जो भी है हमारे पास जैसे, तो वहां पे कूलिंग एजेंट जो पे यूज होता है एज अ रेफ्रिजरेंट जो पे यूज होता है, एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड एज अ डेवैक्सिंग एजेंट। नेक्स्ट कंपाउंड इज क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स IUPAC नेम, देन वी हैव दिस स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, अब एक ही कार्बन आइटम है और इस पे कितने हेलोजन प्रेजेंट है? 3 हेलोजन प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। As far as its preparation is concerned, so first of all, calcium oxychloride is treated with water to form calcium hydroxide। Here we will use this calcium hydroxide for the distillation purpose, plus 2HCl। and next is we have ethanol CH3 CH2OH and it is treated with chlorine to form aldehyde CH3 CHO along with formation of 2HCl। now ये जो aldehyde बना, this aldehyde is further treated with chlorine CH3 CHO। it is further treated with chlorine and what will happen, ये functional group है, इसकी जो adjacent carbon atom है this is known as alpha carbon atom। alpha carbon atom पे जितने भी हाइड्रोजन है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी। so it will form chloral CCl3 आ जाएगा यहाँ पे, thereafter CHO and along with formation of, देखो 3 यहाँ पे Cl2 का addition करोगे, there will be formation of 3 molecules of HCl and this compound is known as chloral। this compound is known as chloral। now we will carry out the distillation of this chloral by using this calcium hydroxide। ये जो हमने calcium hydroxide यहाँ पे फॉर्म किया था, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करके इस क्लोरल की क्या कैरी आउट करेंगे? डिस्टिलेशन जो है वो कैरी आउट करेंगे। सो क्लोरल इसको डिस्टिल ऑफ करें बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सी इट विल फॉर्म CHCl3 along with the formation of
CHCl3 along with 4 CaCOO twice. So बैलेंस कर लोगे इस इक्वेशन को, CaHCOO twice, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स इसके फॉर्म हो रहे CHCl3 के along with formation of CaHCOO twice, ठीक है। सो यस, एक हाइड्रोजन इसके साथ जा रही है, बाकी एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट थी। CHCl3 फॉर्म हो रहा है along with formation of CaHCOO twice. This is what? कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या है यहाँ पे? कैल्शियम फॉर्मेट है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस ऑयली लिक्विड है विद बर्निंग टेस्ट, स्टिकी स्मेल होती है इसके केस में, एंड इट इज पॉइजनस कंपाउंड। किस तरह का कंपाउंड है? इट इज अ पॉइजनस कंपाउंड and act as an anesthetic agent. It can be used to give local anesthesia, hence it can act as anesthetic agent. One important characteristic regarding this compound is it can slow down the central nervous system. ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है हमारा, उसकी एक्टिविटी को, ब्रेन की एक्टिविटी को क्या कर देता है? रिटार्ड कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। That is why it can act as an anesthetic agent. इसी वजह से ये क्या यूज किया जा सकता है? as anesthetic agent जो वो यूज किया जा सकता है। एंड अगर हम इसकी बात करें, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये लेस सॉल्युबल है वाटर में, बट अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा? ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस कंपाउंड, इट कैन रेडली अंडरगो ऑक्सीडेशन। ये जो कंपाउंड है ये इजिली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज हो सकता है, एंड इट विल फॉर्म अनदर इम्पोर्टेंट गैस दैट इज नोन एज फोस्जीन, एंड फोस्जीन इज पॉइजनस गैस। ठीक है, जो फोस्जीन है दैट इज पॉइजनस गैस एंड इट कैन इवन काउज डेथ। जो फोस्जीन है वो इतनी पॉइजनस है कि वो क्या काउज कर सकते हैं? डेथ जो वो काउज कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस विल अंडरगो, दिस क्लोरोफॉर्म विल अंडरगो aerial oxidation and how it will form phosgene. So see, here we have this CHCl3 and when it will react with half O2 in the presence of, half O2 means in the presence of even reduced supply of oxygen, it will undergo oxidation and it will form phosgene. COCl2 is phosgene. This is phosgene, and along with the formation of HCl, you can see one carbon, half यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है, 2 क्लोरीन इसमें आ रही है, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या फॉर्म कर रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फोस्जीन जो है वो फॉर्म हो रही है एंड इट इज अ पॉइजनस गैस। ठीक है, इसके प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये जो है ये पॉइजनस गैस है। अब जो क्लोरोफॉर्म है इसकी एरियल ऑक्सीडेशन जो है वो ना हो, ठीक है, इसकी एरियल ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म सम अमाउंट ऑफ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल इज एडेड टू दिस। ठीक है, इस क्लोरोफॉर्म में कुछ अमाउंट क्या ऐड किया जाता है? इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल जो है वो ऐड किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग इथेनॉल? it will not allow the formation of this phosgene gas। ठीक है, अगर इथेनॉल प्रेजेंट होगा तो इथेनॉल की प्रेजेंस में कोई और कंपाउंड बनेगा, फोस्जीन जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है, सो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ दिस फोस्जीन व्हाट वी विल यूज, वी विल ऐड इथाइल अल्कोहल एंड सी व्हाट विल हैपन व्हेन दिस suppose if there is formation of phosgene gas, then that phosgene will be converted into what? Diethyl carbonate। अगर phosgene फॉर्म भी हो गई है तो phosgene जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डाइथाइल कार्बोनेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। So see, suppose if there is this reaction is taking place and there is formation of phosgene, then this phosgene will be converted. We have, or I'm writing it like this, C11O Cl2 and here I am showing the addition of what? We have shown the addition of ethyl alcohol. Ethyl alcohol is what? This
CH3CH2OH, CH3CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप रिएक्शन कंसीडर कर सकते हो। देखो क्या एलिमिनेट हो रहा है, HCl एलिमिनेट हो रहा है, और इस कार्बन की लिंकेज किसके साथ शो कर दोगे, OCH2CH3 के साथ इस कार्बन की लिंकेज OCH2CH3 के साथ। तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड O CH2CH3 O CH2CH3, ठीक है। अब ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, कितने इथाइल ग्रुप हो गए, 2 इथाइल ग्रुप हो गए। क्या वर्ड यूज करेंगे, डाई इथाइल, ठीक है। कार्बोनेट CO3, 2 नेगेटिव स्पीशीज क्या हो गए, डाई इथाइल कार्बोनेट, डाई इथाइल कार्बोनेट, ठीक है। डाइथाइल कार्बोनेट अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ 2HCl। तो जो फॉस्जीन गैस थी, ये जो टॉक्सिक गैस थी, ये जो टॉक्सिक गैस थी फॉस्जीन, दिस टॉक्सिक गैस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज डाइथाइल कार्बोनेट, ठीक है। तो इस टॉक्सिक गैस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर दिया। सो इट विल बी लेस पॉइजनस, ठीक है। ये पॉइजनस नहीं होगा एज कंपेयर टू द फॉस्जीन। अगर यूजेस की बात करें तो जो क्लोरोफॉर्म है इट कैन एक्ट एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्ट कर सकता है। रबड़ के लिए और डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए जो है ये सॉल्वेंट एक्ट करता है। एंड इट कैन एक्ट एज लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है। लैब में भी जो है ये यूज होता है एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एंड इट इज यूज इन मेडिसिन में भी यूज होता है, डिफरेंट सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूज होता है क्लोरोफॉर्म जो है। बाकी हॉस्पिटल्स में एनेस्थेटिक एजेंट इसको यूज किया जाता था पहले, बट इसका पॉइजनस नेचर होने की वजह से जो है, जैसे कुछ पॉइजनस गैस जैसे फॉस्फीन फॉर्म हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इसको जो है वो रिड्यूस कर दिया। इसकी जगह पे जो है वो और यूज किया जाता है, डिफरेंट ईथर से जो है वो इसको क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया। और अगर यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के प्रोडक्शन में भी इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट कंपाउंड इज आइडोफॉर्म। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ एल्कोहल से। एल्कोहल इज CH3CH2OH, और इसको मैंने ट्रीट किया आयोडीन के साथ along with सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट विल फॉर्म CHI3। आइडोफॉर्म फॉर्म हो जाएगा along with फॉर्मेशन ऑफ NaI, सोडियम आयोडाइड फॉर्म होगा, प्लस HCOO Na फॉर्म होगा along with formation of water, ठीक है। बाकी आप इक्वेशन को जो है वो बैलेंस कर सकते हो। Here we will have 4I2 and 6NaOH CHI3 plus 5NaI plus HCONa, and water molecules कितने आ जाएंगे, along with 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आयोडीन 4 to the 8 आयोडीन होगी, 3 यहाँ पे आ गई और 5 यहाँ पे है, टोटल कितनी हो गई, 8, ठीक है। कार्बन तो कार्बन वो बैलेंस, ठीक है। बाकी सोडियम है, 6 सोडियम के एटम है, 5 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 6। बाकी ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन है आपके पास 6 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई, 1 7, ठीक है। 2 यहाँ पे है एंड 5 यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी द बैलेंस्ड इक्वेशन। इस तरह से आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो आइडोफॉर्म, ठीक है। सो आइडोफॉर्म जो है, देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म। वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म वन बाय वन, बट बिफोर डिस्कसिंग द यूजेस वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज। तो ये जो कंपाउंड है ये येलो कलर का कंपाउंड है। लैब में भी आप इसको इजीली इस रिएक्शन से जो प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्कोहल में आप क्या ऐड करोगे, आयोडीन ऐड करोगे, और उसके बाद ड्रॉप वाइज जो है वो क्या ऐड करोगे, 30% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड करोगे। इजिली आप आइडोफॉर्म जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो वाटर में ये क्या है, इनसॉल्युबल है, बाकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है, ये सॉल्युबल है, ठीक है। अगर यूजेस की बात करें आइडोफॉर्म के, आइडोफॉर्म के अगर यूजेस की बात करें तो एंटीसेप्टिक एजेंट जो वो यूज करता है। एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज की किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयोडीन। आयोडीन की प्रेजेंस से क्या है इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, तो इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट। एंड
in the manufacturing of pharmaceuticals. In the manufacturing of various pharmaceutical compounds, we can use this iodoform. In the manufacturing of different drugs, we can use this iodoform. Next जो हमारे पास compound है, that is CCl4, and this is also known as carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride. So if we talk about CCl4, then it is a non-polar solvent, and there are different uses associated with the CCl4. It is used in the manufacturing of refrigerant or aerosols, and it can also be used for the manufacturing of freons. Freons की manufacturing में भी ये use होता है. By using this reaction, we can prepare the freons. Freons are what? Chlorofluorocarbons. ठीक है, तो CCl4 को मैंने ट्रीट किया है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ. It is forming CCl2, F2, ठीक है, and 2HCl. So 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइफ्लोरो मीथेन जो फॉर्म हो रही है यहाँ पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी बोलते हैं हम इनको. देन इट इज यूज्ड as a solvent for the pharmaceuticals. Pharmaceutical में ये solvent use होता है for the extraction of different drugs. Then it can be used as a solvent for oil, fat and waxes, because oil, fat and waxes these are what non-polar compounds. ठीक है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो ज्यादा होता है इनके केस में, so they are readily soluble in this CCl4. As I told you, this is a non-polar solvent, and it is used as fire extinguisher under the name pyrene, and it is used in dry cleaning. ठीक है, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी जो है वो इसको यूज किया जाता है. सो ऑल दीज आर द यूजेस एसोसिएटेड विद द CCl4. इन द लास्ट वी विल स्टडी द DDT, organochlorine. So next is DDT, and name of DDT is 2,2 base parachlorophenyl 1,1,1 trichloroethane. So as far as the preparation is concerned, we will prepare this DDT from chloral. Chloral का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पहले बताया था, chloral was what? CCl3, then CHO. ठीक है, ये है. तो इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ? पैराक्लोरो सिंपली क्लोरोबेंजीन के साथ जो वो ट्रीट कर रहे हैं. सो दिस इज क्लोरोबेंजीन, and at this position we will have hydrogen. This is another molecule of what? Chlorobenzene. And see what will happen. Water will be eliminated from here. दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाटर फॉर्म कर रहे हैं. और इस रिंग की लिंकेज भी इस कार्बन के साथ हो जाएगी, इस रिंग की लिंकेज भी इस कार्बन के साथ हो जाएगी. So here we will have this, and this is DDT. Now one hydrogen is there at this carbon atom. Yes, so this is DDT. Now here you can see, you will start the numbering from this side, 1 and 2. अब सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिनाइल ग्रुप जो वो प्रेजेंट है, दो बार प्रेजेंट है, तो इसके लिए वर्ड क्या यूज कर रखा है? बेस यूज कर रखा है. 2,2 बेस पैराक्लोरोफिनाइल. ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हैं? तो 1 2 3 4 क्लोरोफिनाइल. ठीक है, पैरा यूज कर सकते हैं या फिर क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पे 4 क्लोरोफिनाइल भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, पैरा यूज कर लो या फिर 4 यूज कर लो, व्हाटएवर भी. सो 2,2 this parachlorophenyl, then 1,1 trichloroethane. ठीक है, this is DDT. So this was the reaction for the preparation of DDT. And as far as the uses are concerned, uses of DDT, so this is an organochlorine.
किस तरह का कंपाउंड है, ऑर्गेनोक्लोरीन है, एंड देयर आर वेरियस यूजेस एसोसिएटेड विद डीडीटी। ये जो है एक इंसेक्टिसाइड जो यूज होता था काफी पहले, जो अब बैन कर दिया। सो अगर डीडीटी के यूज की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसे डिफरेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है या उस ड्यूरेशन में जो है मलेरिया की जो कॉमन प्रॉब्लम होती थी, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए जो है ये कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंसेक्ट की नर्वस सिस्टम को रिटार्ड कर देता है, उसको अफेक्ट करता है। सो इट कैन बी यूज्ड एज पावरफुल एंड इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड एंड बट देयर आर various side effects associated with DDT. Due to its excessive use, it was starting accumulating in different words as well as other species, even in human beings. So इसकी जो decomposition है वो नहीं हो रही थी और different species में क्या होना start हो गया थी, accumulate होना start हो गया था। बट अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत सारी जो दूसरी कंट्रीज हैं तो वहां पे तो इसको बैन कर दिया है, क्योंकि इसके और जो है अल्टरनेटिव जो वहां पे अवेलेबल है। बट इन इंडिया एंड इन एशियन कंट्रीज स्टिल इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। डीडीटी जो वो एज इंसेक्टिसाइड जो वो यूज किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। ठीक है, जब भी जैसे मॉस्किटोज की ब्रीडिंग सीजन आता है तो उस ड्यूरेशन में जो वो इसका स्प्रे किया जाता है। सो पर्पस क्या है इसका, इंसेक्टिसाइड है ये। ठीक है, तो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो वो यूज किया जाता है। So here I can use one term for this DDT, that is non-biodegradable। ये जो DDT है इसके लिए मैं यहाँ पे एक और टर्म जो वो यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनोक्लोरीन। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनोक्लोरीन। ये जो डीडीटी है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनोक्लोरीन है। जैसे फिश है तो फिश में इजीली क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज्ड हो जाता है और इसके जो है वो डेंजरस इफेक्ट्स हैं वो अराइज होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे कन्वर्शंस, ऑर्गेनिक कन्वर्शंस, वेरियस रिएक्शंस। ठीक है।